Okay, Shri Ganeshaya Namah, everybody. We are going live. Ganesha Namah. Yes. Good evening, everyone. As audiences are joining in, we'll wait for another 1 minute or 2 minutes. Let's start. It's already crossing 100. Let's wait for another 1 minute. Today, the guys are joining from London. We are fortunate. Mr. Sabu joining from Dubai. All over the world, people are coming here for this webinar. जी हाँ, हम लोग हैं हेमशिखर 2 सीरीज में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंचुरी की, a legacy of 100 years. It's going to be a very, very interesting session. Oh, there's a guy from Nigeria. So thank you for joining in, sir, from Nigeria. Jitesh Ji Agarwal, thank you for joining in. We are glad the people are coming from Dubai, London, Nigeria. Hi, Pushkaraj, thank you for joining in. We already crossed 200, just waiting for some more to join in. Thanks, Sarvesh. Good evening. Looking forward. Hi, Sanat from Goa. Sanevalia from Andhra. Thanks for joining it. It's all over India, all over the world. People are waiting for this webinar. It's going to be a very, very mesmerizing webinar. I'm sure the way Parag Bhai is going to share his experiences, we all are going to get benefited a lot, and we are going to implement in our businesses. Sir Anup Jawar from Chennai, from Kolkata, Kamal, Nirav Mange from Bombay. Thanks for joining in, guys. So guys, we are already 350 plus, just waiting for another 1 minute so that people get advantage of it. Yes, Vikram Bhai, thanks for joining in. Jagdish Sada from Chennai. Oh, he's ahead for M Circle. Great, guys. I'm seeing a great dignitaries from different NGOs, from different business organizations. We have been blessed that you all are joining us. Thank you very much. Hello, Jagdish ji. Thanks everyone for joining in here. We have already crossed more than 350 and expecting more. Thanks Neha Mittal. She's a head for Ekal Yuva NGO, a very big NGO जो 1 लाख लोगों को स्कूल में पढ़ाती है. It's a great job you all are doing. Mehul Mehta, good evening. Radhika Mistry, good evening. Today we have a very, very fortunate dignitaries on the panels, starting from SPJ Menon sir, Mr. Sabu, Mr. Rajkumar Kalia from Aishwarya Yuva Sangathan. Everyone is here. Good evening, Pavanji. Good evening, Pravayati. Let's start. Good evening to everyone. थकान से कभी उसको रोका नहीं, इरादों ने कभी उसको टोका नहीं, अपनी मंजिल पे थी नजर उसकी, राहों के पत्थरों ने कभी उसको रोका नहीं. जी हां, जीवन के इस सफर में अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जहां मुसाफिर परेशान हो जाता है, थक जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुसाफिर रहते हैं जो इन मुसीबतों को मुस्कुराना सिखा देता है. स्वागत है आप सबका हेमशिखर के दूसरे पड़ाव में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ लीगेसी ऑफ 100 इयर्स, जहां हम लोग डायग्नोस करने वाले हैं उनकी सफलता का भी. हाँ, आज हम बात करने वाले मिस्टर पराग देसाई फ्रॉम वाघ बकरी. बट उसके पहले, कोई भी शुभ कार्य चालू करने से पहले हम प्रभु का नाम लेते हैं. मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए.
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Om Ganeshaya Namah. We are very fortunate to have respected dignitaries on the panelist. I would like to take a minute to introduce them. Starting from our guest of honor today, Mr. Parag Desai, Executive Director of Wagh Bakri. Shri Mahendraji Kabra, Managing Trustee, Hema Foundation. Shri Anitaji Maheshwari, Trustee and Creative Director, Hema Foundation. Shri Nagpalji Singh, Academic Director, Hema Foundation. Shri Tribhuvanji Kabra, Chairman of ARA Global. Shri Rajkumarji Kalia, President, Akhil Bharatiya Maheshwari Yuva Samiti. Maheshwari, Secretary, Akhil Bharatiya Maheshwari Yuva Samiti. Shri Rupeshji Soni, Vice President, Akhil Bharatiya Maheshwari Yuva Samiti. We are fortunate here to have Shrikant Sabu, AMI Region Chairman from Dubai. Vishal Sureka, a Chairman of 198 Roundtable Mumbai. Anil Menon Sir, a Guru of Finance from SP Jain. Dr. Narayan Iyer, Founder, CEO and IDF. Mr. Motwaniji, Founder of Diaspora Times. Thank you everyone for presenting here, being here and giving us the honor for this webinar. Request now Nagpalji to introduce about Hem Virtues for 1 minute. Good evening, everybody. Today's Honorable Speaker Parag Bhai, our master, our guide, and all the panelists. I'll just take 1 minute of yours to try to brief about Hem Virtue. Hem Virtue is a vision of 2000 years our ancestors have dreamed of. Hem Virtue is a planning that really needed for this country to live those values. It is an envisioned dream of Hema Foundation, RR Global, to make the Indian values reach every student and every society. We are working with academia from schools to universities. We are developing the contents. We are working in sync with lots of educational institutes from grassroots to the highest standard of education. At present, Hema Foundation is in more than 20 states and more than 170 cities. It is working to establish the great Indian values amongst the children. To do that, we have worked extensively to make values imbibed and integrated with academics. Today, Hem Virtue is a revolutionary portal which was launched on 25th June. It is an academic revolution, free of cost, can reach to all India without any, any charges of it, and serving to the nation for the values and integration of education. It is all being done under the philanthropic arm of RR Global. We are having Bhai Manji Kabra here.
that is all about Hem Virtue. In nutshell, we are trying to see the value-based society that our ancestors have cherished and dreamed for us. Before I go on forward, I would like to have a little peek into accomplishments and the achievements of Wagh Bakri. We are having a small video that will try to showcase us how wonderfully, how impeccably the journey of Wagh Bakri has really taken everyone by surprise and everyone by their strides. Can I request to play that video? And thank you so much. सौ सालों से रिश्ते निभाए, सौ सालों से रिश्ते निभाए, हमेशा ये रिश्ते बनाए, वाग बकरी चाहे। संजोए तजुर्बे के प्याले, जहां को हम पिलाए, नए नए रिश्ते बनाए, वाग बकरी चाहे। झीलों को बहाए, गुलों को खिलाए, यादों के बागान फिर गुनगुनाए, हंसाए खिलखिलाए, वाग बकरी चाहे। मेहनत की महक से, रिश्तों के रंगों से, स्वादों की सरगम से, निखारे सवारे सजाए, वाग बकरी चाहे। इंडिया के लाखों दिलों में जो छाए, गुजरात की ये शौहरत जहां में बढ़ाए, खुशबू यहाँ की जहां में फैलाए, वाग बकरी चाहे। चलो 100 सालों का जश्न हम खुल के मनाए, हमेशा ये रिश्ते बनाए, वाग बकरी चाहे। Wow, what a video. Really a great corporate video. Amazing, sir. वीडियो इतना अच्छा है तो चाय पीने में कितना मजा आएगा। अभी मैं निमंत्रण करना चाहूंगा राजकुमार जी कालिया को। आप पराग जी देसाई जी का इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सुमित जी। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन और हेमा फाउंडेशन की ओर से आज आयोजित वर्चुअल वेबिनार में उपस्थित वाग बकरी चाय के श्री पराग जी देसाई साहब का मैं अपनी ओर से और हेमा फाउंडेशन तथा युवा संगठन की ओर से हार्दिक आभार और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर जो आपने लगातार 4 पीढ़ियों से और 100 वर्षों से भी अधिक अपने चाय के व्यवसाय को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, आपसे हमारे यूथ को और ऊर्जावान साथियों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा
कि किस तरीके से व्यापार और व्यवसाय को निरंतर प्रगति की ओर हम ले जा सकते हैं। मैं आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी समाज बंधुओं का और सभी उपस्थित साथियों का तथा देश और विदेश से वर्चुअल रूप से उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद राजकुमार जी। धन्यवाद राजकुमार जी फॉर सच अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया उसके साथ चलती है। जब जब उस पर कोई हंसा है तब तब उसने एक इतिहास रचा है। जी हाँ, ऐसे ही इतिहास रचने वाले श्री पराग जी भाई वाघ बकरी से जो आज लेके आने वाले हैं हम सबके सामने, उनका एक ऐसा अनुभव जिससे हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। A man with a tunnel vision. He is a drapster of the tea industry and he is the perfect epitome of a multitasker. Not taking much out of your time, I would like to invite here today's chief guest, Mr. Parag Desai from Wagh Bakri. Sir, all yours. Namaste, Sumit ji. How are you? Sir, all well. Thank you for coming, sir. Thank you. Very impressed with your introduction and the HEM Foundation story. You know, I was also on the website earlier last week, and really, it's very impressive the kind of work you guys are doing. Thank you, sir. As you know, my name is Parag Desai. I am the 4th generation of the Wagh Bakri tea group. And हम लोग चाय का व्यापार करते हैं, बट हम रिश्ते में बहुत मानते हैं। हमारे आपने जो वीडियो देखी वो सारी वीडियोस में जितने भी एक्टर्स, सिंगर्स जो भी थे वो सारे हमारे कोट अनकोट एम्प्लॉयज है और हमारे लार्जर फैमिली के मेंबर्स है। और वी ऑलवेज टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ लाइफ एंड दैट इज selling tea, making friends, recruiting new people, discussing larger issues of life and philosophy. And during challenging times like COVID, जो हमारे बीच में अभी है globally, we also end up doing things which we never planned, but because we thought that this is good for the society, we would do it. So once again, thank you all for having me. Thank you. सर, आज का जो है सवाल, क्योंकि आपने सेंचुरी मारी है तो कुछ ना कुछ गेंद हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे आता है और आते हैं। सर, 100 साल पहले मकान कच्चा हुआ करते थे लेकिन रिश्ते पक्के थे। आज के जमाने में मकान पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हैं। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए लागू नहीं होता। सर, आपने 100 साल का इतना बड़ा इतिहास रचा है, एक विरासत खड़ा किया है। सर, आपने व्यापार, रिश्ते और मकान, इन तीनों को पक्का और मजबूत बना के रखा। इसके पीछे सर राज क्या है? गुड क्वेश्चन। और मुझे अच्छा लगा कि आपने जिस हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेज किया। मुझे याद है कि जनवरी में हम लोग मिले थे हमारे 100 साल के इवेंट के टाइम पे। जनवरी में एग्जैक्टली हमारी कंपनी के 100 साल हुए थे, तो हमने इतना बड़ा इवेंट रखा था कि गुजरात में इतना बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट आज तक नहीं हुआ। बट उस टाइम पे इतनी मजा की, एंड थैंक यू पर्सनली सुमित फॉर कमिंग। किसी को नहीं पता था कि मार्च में हम सब लॉकडाउन हो जाएंगे कोविड में। सो आपके प्रश्न के उत्तर में मेरी तो ये जर्नी 30-35 साल की है फैमिली में, जब से मैंने व्यापार ज्वाइन किया है। बट उसके पहले मैं कभी हम इतिहास देखते हैं कि कितनी सारी चैलेंजेस हुआ करती थी फॉर पीपल टू डू बिजनेस एंड टू कम अप इन लाइफ। आज तो डिजिटल के युग में काफ़ी चीज़ें इजी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से लेके कम्युनिकेशन तक। बट जो हमारे पूर्वजों या हमारे अर्लियर जनरेशन ने जो मेहनत की, जो काम किया और जो खुद के मन में विश्वास रखा कि ये हो सकता है, काफ़ी राइटर्स ने लिखा है कि इफ यू थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट, बट पहले आपके माइंड में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो आगे मैं आपको बताऊंगा हमारे फैमिली की जर्नी। बट एक चीज़ आपके सवाल के जवाब में कि हमने जो मन में विश्वास और परिवार की भावना लेके हम आगे चले, वो मेन रीज़न है लॉन्ग टर्म व्यू का कि हमको सक्सेस मिली।
कुछ फैमिली विजडम के बारे में आप बताना चाहेंगे कि आप लोग कैसे फैमिली में गेट टुगेदर होता था, कैसे आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, हमारा एक संयुक्त फैमिली है और उसका एक अलग आनंद होता है। और संजोगवश हमारा जन्म ऐसी जगह पे हुआ कि सारा फैमिली एक साथ ही रहता था। तो आज भी हम कभी किसी चाचा को मिलते हैं या किसी कजिन को मिलते हैं तो हमें फैमिली में फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि हमारा फैमिली इतना था स्ट्रांग। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का फैमिली भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे एम्प्लॉयज भी अभी थर्ड जनरेशन में है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थर्ड जनरेशन में है। सो फिलोसॉफी ये है कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, और मेरा जो प्रॉब्लम है उसका हमें साथ में मिलकर सोल्यूशन ढूंढना है। सो जब तक सोल्यूशन नहीं मिले तब हम मीटिंग तो एक अंग्रेजी शब्द हो गया, तब हम चिंतन करते हैं। और काफी बार ऐसा हुआ है कि सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, पता है, फिर भी मिलके हम एक एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ वुड अदर्स हैव अप्रोच दिस प्रॉब्लम, और एक दिन अपने आप ऊपर वाले की मेहरबानी होती है और सॉल्यूशन मिल जाता है। आज हम वी आर अ लार्ज कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग इन सो मेनी कंट्रीज एंड सो मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. This was not always the case. So the initial founders, the way they stood up to a lot of issues, and हमारे इतिहास में my great grandfather, he came to India just for freedom struggle, और ऐसा ही था कि इंडिया would become free of the British, और फिर हम वापस अफ्रीका, हमारा जो एरिया था काम करने का, वहाँ के चाय के बागान थे, वहाँ वापस जाएंगे। बट कभी वापस जाना नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के प्रोग्रेस के साथ ही हमारा प्रोग्रेस हुआ। और जो सोचा था फ्रीडम स्ट्रगल 10 साल में मिलेगी, वो 50 साल में मिली। तो वो जनरेशन को भी इच्छा नहीं हुई कि हमने इतनी मेहनत से फ्रीडम ली है तो अभी इंडिया के लिए ही कुछ करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर देयर इज अ वेरी कॉमन क्यूरियोसिटी इन एवरीवन्स माइंड, व्हाई नेम वाघ बकरी, वेयर वाघ इज अ फेरोशियस एंड द बकरी इज अ मीक। दोनों बहुत ही डिस्टिंक्ट एंड पे है सर, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी क्या है, ये नाम वाघ बकरी आया कैसे? ये बहुत एक यूनिक क्वेश्चन है, जो मुझे, अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ और किसी को आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, और जब भी मैं बोलता हूँ वाघ बकरी कंपनी, तो पहला क्वेश्चन इवन एयर होस्टेस भी मुझे पूछती है कि ये वाघ बकरी नाम आया कैसे। बहुत एडिक्टिव नाम है और बहुत यूनिक नाम है। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। जब मेरे फोरफादर्स, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो ही यूज्ड टू ओन टी गार्डन्स इन डरबन अफ्रीका, और ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल टी प्लांटर ओवर देयर। हुआ यूं कि उनके लड़के, मानी मेरे ग्रैंडफादर को, उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना भेजा, और बोर्डिंग स्कूल में वो तब राजकोट नाम का एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ रिच किंग्स उनके लड़के को भेजते थे। तो वहाँ आए और उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया, वो वापस गए। उस जमाने में ब्रिटिश राज अफ्रीका पे भी था और इंडिया पे भी था। उन्होंने देखा कि इंडिया में कितने अत्याचार हो रहे हैं। इंडिया हमारी मदर कंट्री है, अफ्रीका इज द करंट कंट्री। तो जो उस जमाने में आज जो अमेरिका का क्रेज है, उस जमाने में अफ्रीका का क्रेज हुआ करता था। सो ग्रेट ग्रैंडफादर हैड माइग्रेटेड टू अफ्रीका एंड बिकम वेरी सक्सेसफुल ओवर देयर। सो जब इंडिया आए तो एक यूनिक चीज हुई कि पूरे फैमिली 27 लोग एक शिप में बैठ के आए, और पूरी फैमिली फ्रीडम स्ट्रगल में जाती थी रोज। और जो सबसे परिवार में छोटा था, उसको बताया गया है कि भाई हमें तो खाली चाय का व्यापार के बारे में पता है, तो एक चाय की दुकान करते हैं, जो सबसे छोटा होगा वो चाय की दुकान में बैठेगा। अब चाय की दुकान मिल गई पुराने अहमदाबाद में, इन दी ओल्ड वर्ल्ड सिटी, और उस जमाने में अहमदाबाद वाज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, माने जितनी भी सारी मिल्स थी वो सारी अहमदाबाद में थी। तो चाय की दुकान का नाम क्या रखे? सो रोज फिलोसॉफी ये हुई थी कि भाई हमें ब्रिटिश राज में इंडियंस के लिए अलग रूल, ब्रिटिशर्स के लिए अलग रूल, तो ये सब हटाना था। तो सबने ये सोचा कि ऐसा नाम रखे कि ब्रिटिशर को मालूम भी नहीं पड़े कि हम क्या कहना चाहते हैं, और इंडियंस को मैसेज ऑफ इक्वालिटी भी मिले। तो उस जमाने में सुमित जी, रशियन सर्कसेस वाज लाइक बॉलीवुड टू इंडिया। तो उस जमाने में काफी रशियन सर्कसेस इंडिया में आते थे, और the people used to go to see the circuses to see the animals and the tricks etc etc. तो शाम के टाइम पे सत्संग हुआ करता था, साधु महात्माओं के साथ शाम के टाइम लोग बैठते थे। तो एक दिन दादाजी ने साधु महात्मा को पूछा कि भाई हमारी दुकान का नाम नहीं मिल रहा है, हम बहुत सोच रहे हैं, पर नाम ऐसा चाहिए जिसका हिडन मीनिंग हो।
तो एक साधु महात्मा ने एक कोयला लिया, चारकोल कहते हैं जिसको, और एक ब्रिक वॉल पे उन्होंने ड्रॉ किया, एक बाजू टाइगर, एक बाजू गोट, और बीच में एक चाय का कप जिसमें से दोनों लोग चाय पीते हैं, और बीच में उन्होंने एक पहलवान को खड़ा रखा। उस जमाने में गामा पहलवान वाज द शाहरुख खान व्हाट ही इज टू बॉलीवुड और अमिताभ बच्चन टुडे। तो उन्होंने ये फिलोसॉफी दी कि आप ऐसी चाय बनाइए कि लोग समझ जाए कि अगर आप रिच है या आप पुअर है, चाय की क्वालिटी और क्वांटिटी आपको उतनी ही मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है अभी ब्रिटिश राज में, तो हमारी दुकान पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो उस जमाने में ब्रिटिशर्स के लिए रोड अलग थे, प्राइसेस अलग थी। So we were one of the first shops in India जिसमें चाय में there was no discrimination, और that was the story behind the brand. And even today, like I remember 10 years back I went to the Middle East to launch my products, and वहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी ली, स्टडी किया, हमारी 3-4 और ब्रांड्स है, उसमें एक गुड मॉर्निंग ब्रांड है। वी ऑल वर वेरी श्योर कि आज मीन्स ये रिसर्च के फाइंडिंग भी आएगा कि गुड मॉर्निंग ब्रांड शुड बी लॉन्च एंड नॉट वाघ बकरी। बट वहाँ इतना डीप रिसर्च किया और वहाँ पे भी आया कि आज जो शेख है वो भी अपने ड्राइवर के साथ एक कप चाय पीना चाहता है। ये जो दूरियां है वो टेम्पररी चाय के कप पे मिटा सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि कहीं पे इंडिया में हो या ओवरसीज, एक चाय का कप इज एन आइस ब्रेकर, एंड वो एक जो मजा आता है कि अलग अलग लोग एक कप पे मिलते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स टेम्पररीली और परमानेंटली, आई डोंट नो, बट दे आर बिकम, व्हाइल दे आर एंजॉयिंग द टी, दे बिकम फ्रेंड्स। So this is the story and the philosophy behind Wagh Bakri tea, which has stood the test of time in the last 100 years. Wow sir, what an ideology. मेरे ख्याल से उस टाइम जमाने में ब्रांड एजेंसी नहीं होती थी पर्पस है आइडियोलॉजी बताने में, बट ये सोच आपके परिवार की फैमिली विजडम की तब से चली आ रही है और उसका राज हमको मालूम पड़ चुका है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सर, we come to third question. We heard that Wagh Bakri was praised by proponent of truth and non-violence, Sri Mahatma Ji Gandhi. It's really unique and amazing. Please tell us more about it. मेरे ख्याल से मेरी टीम ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है महात्मा गांधी का. If you can put it on and then I tell the story. So this is a certificate we got from Mahatma Gandhi. गांधी जी के उनके हैंडराइटिंग के लिए मशहूर नहीं थे, तो देख सकते हैं. So मेरे दादाजी जब अफ्रीका से राजकोट आए पढ़ने के लिए, तो गांधी जी उनके चाइल्डहुड फ्रेंड बने और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था क्योंकि उस जमाने में आपस में चिट्ठी लिखते थे, और 6 महीने में एक बार चिट्ठी पहुंचती थी. तो गांधी जी फिर जब बैरिस्टर बनने के बाद अफ्रीका वो खुद आए, एंड एज यू ऑल मस्ट हैव सीन इन द मूवी गांधी, ही वाज थ्रोन ऑफ द ट्रेन फॉर सिटिंग इन द रॉन्ग कोच. And that's from where the Quit India movement started. So during those times, he used to stay with us, and he influenced my grandfather and everyone कि आपके पास बहुत पैसा है इधर, आप छोड़ के 10 साल तक इंडिया जाओ और फ्रीडम लेके वापिस आ जाओ. So that was the philosophy. तो उस जमाने में कोई बैंकिंग सिस्टम या ऐसा कुछ था नहीं, तो जो था वो छोड़ के almost penniless 27 people sat on a ship. तो उनको पूछा कि हमें इंडिया में कोई पहचानता नहीं है, तो आप कैसे, हाउ डू वी, कोई बोले कि आप क्या करते हैं. ये सर्टिफिकेट दिया. सर्टिफिकेट में ये लिखा है, आई न्यू मिस्टर नारायणदास देसाई इन साउथ अफ्रीका वेयर ही वाज अ सक्सेसफुल टी प्लांटर. और उसका डेट आप देखो 1915 का डेट है, और उनके नीचे गांधी जी. तो उस जमाने में ये सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत थी, और आज भी हम जब भी कुछ भी हम यूनिक चैलेंजेस आती है तो हम सर्टिफिकेट के सामने देखते हैं कि भाई किस जमाने में कैसी शुरुआत हुई थी, और आज भी उसका हल हमें मिल जाता है. सो दिस इज अ वेरी प्राउड सर्टिफिकेट विच वी हैव विथ अस कि गांधी जी के एक सर्टिफिकेट पे पूरे फैमिली ने अफ्रीका छोड़ के शिप पे बैठ के अहमदाबाद आए और फ्रीडम स्ट्रगल में चले गए. सो ये सर्टिफिकेट के आधार पे हम इंडिया आए, जिसको भी मिले कि अच्छा आप गांधी जी को जानते हैं, उनका सर्टिफिकेट है, तो आइए आप फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले सकते हैं. क्योंकि गांधी जी के फ्रेंडशिप थे, बट जब इंडिया में आए तो इतना बड़ा पैमाने पे फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी. सो आई रिमेम्बर माय ग्रैंडमदर्स, सो दे ऑल पास्ड अवे पोस्ट 95. सो आई हैव ग्रोन अप विद देम, आई लॉस्ट देम ओनली इन द लास्ट 5-7 years. तो उनके साथ बचपन की कहानी कि हम कैसे पिकेटिंग में जाते थे, कैसे उस जमाने में एक ही था कि आप जाओ और सामने वाला, नॉन वायलेंस में हम बिलीव करते हैं, सामने वाले बिलीव नहीं करते, तो मार खा के आने का, 1-2 महीना हॉस्पिटल में रहने का, वापस जाने का.
वापस मार खा के आने का वापस. So the ladies used to go sing songs of patriotism and the men used to go, and जो परिवार में सबसे छोटा है उसको दुकान में बैठना है. So ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई और सर्टिफिकेट के आधार पे हमें एक विश्वास मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम कर सकते हैं. Thank you for explaining detail. It's really honor for us to see. I am sure यहाँ पे लोग जितने भी देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट एक इतिहास है और आपके पास एक खजाने की तरह पड़ा हुआ है सर. थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अस. हौसले जिनके अकेले होते हैं, काफिला एक दिन उनके के पीछे आता है. आइए सर, आपके लिए नया प्रश्न. हाउ डू यू कीप योर ब्रांड इमेज अल्ट्रा मॉडर्न एंड कीप रिजुविनेटिंग इट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ब्रांड एडवोकेट्स? किस प्रकार आप अपने ब्रांड की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं और उसको अपग्रेड करते रहते हैं? Good question. We come to the subject of marketing, which is one of my favorite subjects. हम लोग रिसर्च में बहुत बिलीव करते हैं. So इंडिया में जैसे आपको पता है या ग्लोबली ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मल रिसर्च दैट वी कैन रिलाई ऑन. सो हम खुद रिसर्च करते हैं. हर 2 साल हम कस्टमर्स के घर पे जाते हैं, हम अलग अलग ट्रेंड्स ढूंढते हैं, हम डिजाइनिंग पे रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग पे रिसर्च करते हैं, कंजम्पशन पे रिसर्च करते हैं. सो हमें उससे काफ़ी इंसाइट्स मिलती है. इट बिकम्स अ 6 month प्रोजेक्ट एवरी 2 years, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज एवरीवन डूइंग. जैसे रिसर्च में आता है कि which in packaging which are the current colors people are choosing. Similarly we go to many countries. So Middle East में अलग colors, Scandinavian countries में अलग colors, US में अलग colors, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाओ तो पैकेजिंग में अलग कलर्स प्रेफरेंस करते हैं. इवन हाउ पीपल ड्रेस. सो इट ऑल कम्स डाउन कि हाउ आर कंज्यूमर्स नीड्स चेंजिंग एंड वी हैव टू बी 2 कदम आगे होना पड़ता है. सो हमें एंड हमने एक तय किया है कि जो कंट्री की सबसे बेस्ट एजेंसी होगी टॉप 3 उसी के साथ काम करेंगे. और कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट एजेंसीज आइदर यूनिलीवर के पास होती है या टाटा के पास होती है जो हमारे बड़े भाई है, तो उनके अलावा फिर हम काम करते हैं. और हमारी एड एजेंसीज के साथ भी बहुत लंबे रिश्ते हैं, हमारी रिसर्च एजेंसीज के साथ बहुत लंबे रिश्ते होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ. सो वी वांट पीपल who look at life our way, our style and our philosophy, which is only one thing, long term. So research के आधार पे काफ़ी चीज़ें होती है. हमारे यहाँ R&D का भी बहुत बड़ा काफला है. आपको जान के ताज्जुब होगा, we are the only NABL certified lab people in the tea industry और हमारे यहाँ काफ़ी साइंटिस्ट है जो काम करते हैं. So काफ़ी ट्रेंड्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि पिछले 10 साल में इंडियंस ट्रैवल्ड अ लॉट आउटसाइड इंडिया फॉर वर्क एक्सेट्रा. पहले होता था कि आप अगर ओवरसीज जाते हो तो साल में 1 बार जाते हो, अभी महीने में 2 बार भी जा सकते हो. सो लोगों को वहाँ अपने जैसी अच्छी चाय नहीं मिलती थी. तो हमें ये हमारी टीम को बताया कि ऐसी चाय बनाओ कि जिसमें अगर खाली गर्म पानी डाले तो चाय बन जाती है और आपको अपनी घर वाली चाय मिस नहीं हो सकती. So our tea set up and after 3 rounds they made a wonderful instant tea. अब instant tea इतनी hit हो गई कि then the Indian Railways approached us. Again Indian Railways is other end of the spectrum. वो कहते हैं कि रेलवे में भी चाय बनाना बहुत मुश्किल है तो आप कुछ करो. Then the airlines came. Then suddenly we say कि so many people are having it and then we got from कि भाई इंडिया में 35% लोग तो डायबिटिक्स होते हैं, उनको शक्कर का मना है, तो बिना शक्कर का बनाओ. तो बिना शक्कर का बनाया. फिर 2 साल पहले ये आया कि बिना शक्कर में इतनी मजा नहीं आती है तो स्टीविया के साथ बनाओ. तो इस साल हमने स्टीविया के साथ लॉन्च की. हर एक रिसर्च के हर एक न्यू प्रोडक्ट के पीछे 1 साल का काम होता है और काफी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. बट हमें आनंद ये होता है कि वी समवेयर ड्यू टू आवर बिलीफ इन रिसर्च हम 2 कदम आगे रह सकते हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि वी डू अ लॉट ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, वी ऑल्सो सब्सक्राइब टू लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड वी वॉच अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग. जैसे आज हम लोग बैठे हैं कोविड टाइम में, तो पिछले 3-4 महीने से पीपल हैव अखबार को भूल गए, टीवी को भूल गए, पूरा डिजिटल कंजम्पशन हो गया. तो उसमें भी क्या ट्रेंड्स आए उसका भी हम लोग करते हैं रिसर्च और उसके आधार पे फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं. सो टुडे योर मोबाइल हैज बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. आज एक जमाना था लोग लैपटॉप लेके चलते थे ऑफिस में, उनके पास प्यून होते थे, टीम होती थी, एक पीसी होता था. आज ये सब बंद होके मोबाइल पे आ गया और मोबाइल पे ही लोग खुश है. पहले लोग मोबाइल पे कर सकते थे पर खुश नहीं थे लोग. अभी खुश है क्योंकि दे नो कि फॉर न्यूज आई विल सब्सक्राइब टू दिस साइट,
for other things. I will do this, I will do this, I will go. And people have now started having strong views. So for example, a lot of people say, I will not use these apps, I will use only these apps, but communication has not stopped. So हम वो कर्व हमेशा राइड करने की कोशिश करते हैं ऑफ ट्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन इनसाइट. तो जितना आसान लगता है कि गर्म पानी डालो और चाय के मसाले में हम गर्म चाय ऐसे ही पी सकते हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी R&D होती है, आपने अच्छे से बताया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर. कल आएगा, ये बात सही है, लेकिन उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ती है. मैं समझता हूँ पराग भाई टीम कल की तैयारी बहुत जोर शोर से करते हैं. जिस तरीके से एज बढ़ते जा रहा है, उनमें कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है. सर, हाउ वाघ बकरी टी lounges are doing and how are they contributing to progress of Wagh Bakri Tea Group? So Wagh Bakri tea lounges also are something that I am personally very proud of, because हमने जब मैं लेट 90s में मेरा US से हायर एजुकेशन करके इंडिया में फॉर्मली फिर से मेरे बिजनेस में जुड़ा, तो एक चीज हमारे फैमिली में काफी बात हुई कि चाय की इमेज को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं. उस जमाने में एक बहुत पावरफुल टी बोर्ड हुआ करता था, गवर्नमेंट के फंडिंग थे, बट चाय की इमेज का जब टॉपिक आता है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था, और हमको पता है कि बाय दैट टाइम कैफे कॉफी डे एंड द कैफेज हैड जस्ट स्टार्टेड. सो व्हेन वी वेंट एंड व्हेन वी लुक्ड अराउंड, वी सेड कि देखो ये तो नहीं चलेगा. और मैं जब यूएस में था तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू नो द स्टारबक्स चेयरमैन वेरी वेल and know to go businesses बहुत अच्छा. So QSR was my love कि QSR sooner or later इंडिया में आएगा. What happened was हमने तय किया कि राजस्थान में लॉन्च करेंगे, और राजस्थान में जब हमने देखा, उस जमाने में सेल्स टैक्स हुआ करता था, तो हमने देखा कि अगर पूरा सेल्स टैक्स भर के मैं लॉन्च करता हूँ तो आई वुड बिकम अनकम्पिटिटिव, बिकॉज मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, इट्स जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, सो दे हैड फाउंड अल्टरनेटिव वेज टू अवॉइड सेल्स टैक्स. सो कस्टमर वाज थिंकिंग कि वाघ बकरी चाय बहुत महंगी है और बाकी चाय तो अच्छी ही है, क्या फर्क है. सो हमने तय किया कि जयपुर जो राजस्थान का कैपिटल है, वहाँ पे एक टी लॉन्च खोलते हैं, एंड वी वांट टू शो पीपल कि व्हाट इज वाघ बकरी टी, व्हाट इज लेगेसी. आप आओ, आप देखो अच्छी चाय कैसे बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं. सो वी ओपनड आवर फर्स्ट टी लॉन्च इन पोलो विक्ट्री रोड. वी हैड नो आइडिया कि क्या है ये बिजनेस, क्या है, बट एक दिल से चालू किया पोलो विक्ट्री रोड पे एक टी लॉन्च. उससे हमें बहुत सीख मिली, और वी हैड टू रैप अप दैट टी लॉन्च विद इन 3 years, बिकॉज द प्रॉपर्टी वाज नॉट लीगल, द ओनर्स वर फाइटिंग, द रोड वाज बीइंग वाइडन्ड. सो ये सब सीख हमें वो एक्सपेरिमेंट से मिली. उसके बाद हमने जब महाराष्ट्र में लॉन्च करने गए तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट. सो हमने विलेपार्ले एक एरिया है जो एयरपोर्ट के नजदीक है, सो विलेपार्ले में हमने हमारा पहला टी लॉन्च खोला, एंड इट बिकेम अ सुपर हिट, एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू BKC, फ्रॉम देयर वी वेंट टू दिल्ली में लाजपत नगर, कीर्ति नगर, पीथमपुरा, जो भी ऐसे क्लस्टर्स थे जहाँ पे लोग चाय के शौकीन और एक अच्छी प्रोडक्ट के आदी है, वहाँ हम जाके एक और अच्छी प्रोडक्ट दिखाते थे. सो टुडे इफ यू गो टू एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज, there is a fair chance you will get us in either smaller formats or larger formats. Our biggest tea launch today is in Ahmedabad and in Connaught Place in Delhi. Both are doing, even in the pandemic, we have just reopened last week. They are doing very well. And people come back because they like the atmosphere and they like the tea and the accompaniments which go with it. So हमारा शुरुआत का इरादा ये था कि ऊपर वाला ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम चाय की इमेज के लिए कुछ करेंगे. Today it has completely changed. Now in the last 2 years, I can tell you, we have multiplied manifold, and now we are looking at it as a serious business. But in the last 10 years, we were just looking at it कि चाय की इमेज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, and government and all, not to blame them, but no one was really concerned. आप अगर चाय की किटली पे जाते हो, एक नीम के पेड़ के नीचे अच्छी चाय तो मिलती है, बट वो शायद एक आपको प्लास्टिक कंटेनर में मिलेगी. लोग टू गो चाय लेते हैं, वो प्लास्टिक की थैली में लेते हैं. नाउ दिस इज नॉट हाइजेनिक स्टफ एंड दिस इज नॉट स्केलेबल. प्लस अच्छे फैमिलीज कभी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक इमेजरी अलग है. सो वी हैव सक्सीडेड इन बीइंग पायनियर्स इन द टी कल्चर, एंड थैंक्स टू द टी लॉन्चेस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द टी इमेज आल्सो. Great, Parag bhai. Thank you very much for showing us the way. You are not only a first mover, you are also a fast mover.
थैंक यू सर। सर जीवन रंगों में मसालों का अलग ही आनंद होता है, और अगर इन्हीं मसालों का आनंद अगर चाय में मिल जाए तो बात ही क्या है। सर आपके आने पे पहले मैं ऑडियंस से इस पे पोल लेना चाहूंगा कि वो जीवन के इस मसालों के बारे में क्या सोचते हैं। आई विल रिक्वेस्ट फॉर ऑडियंस पोल। और जवाब आप। All right, audience. We are more than 500 people currently. आपके सामने एक स्क्रीन आया होगा जिसमें लिखा है कि जीवन के रंगों में मसालों का अलग ही आनंद है। उन्हीं मसालों का आनंद अगर चाय में भी मिल जाए तो बात ही क्या है। जीवन के इन मसालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप जल्दी जल्दी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। मसाला चाय, केसर चाय, लेमन चाय या जिंजर चाय। आपके पास 5 सेकंड है। क्विकली 5, 4, 3 एंड पोलिंग। All right, 64% of our audiences have chosen masala chai and 18% have chosen ginger chai. थैंक यू ऑडियंस फॉर मसाला सबका स्वाद है। सेम हियर एवरीवन। पराग जी आपका भी शायद मेरे ख्याल से मसाला चाय पे आपका ज्यादा स्वाद है। थैंक यू वेरी मच। हजारों लोगों में तादाद में आज ये देख रहे हैं वेबिनार को। सर कुछ जूम में एड ऑन है, कुछ फेसबुक पे लाइव है, कुछ आपके पेज पे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर सक्सेस इन द बिजनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरस डिसीजन टेकन। सम माइट गो वी एक्सपेक्ट as opportunity gained, or some might prove otherwise opportunity lost. Sir, we want to know about some of your decisions and situations from your memory that proven to come as opportunity gained or some as opportunity lost. So I would like to continue with our discussion on tea lounges. टी लॉन्जेस का जब बिजनेस चालू हुआ तो परिवार ने मुझे बोला था कि तुमको ठीक लगे वो करो, बट ऐसा करना है कि नाम आगे बढ़े, वापिस हमारी इमेज को कुछ होना नहीं चाहिए। सो जयपुर की मैंने फेलियर आपको बताया। ऐसे ही जब एक्सपेंशन की बात हुई तो वी आर लाइक यू सेड, आई टोल्ड यू, वी आर अ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो द टीम वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि गोवा में एक टी लॉन्ज खोलना चाहिए। अब मैं जब भी गोवा गया और या मेरे दोस्त लोग कभी भी या आपके कोई भी गोवा गया तो वो चाय पीने के लिए तो कभी गए नहीं होंगे, सो आई वाज वेरी वरीड कि भाई गोवा जैसी जगह में चाय पीने के लिए कौन आएगा। फिर भी आई सेड कि चलो एक काम करते हैं, इतने टीम का कॉन्फिडेंस है और इतना रिसर्च आया है तो लेट अस ट्राई। सो वो टाइम पे वी वर लुकिंग फॉर अ आउटलेट एंड वी वर लुकिंग फॉर अ स्मॉलर आउटलेट एंड वी गॉट समथिंग बिगर। So then again the team came back to me, should we do it, should we not do it? I said, now if you want to experiment, let's do it. So in Panjim, you won't believe, we started an outlet. और पहले महीने तक तो मैंने खुद सेल्स देखा ही नहीं, क्योंकि in my mind I was confident के लोग नहीं आएंगे चाय पीने के लिए गोवा में। और हमारा जो आउटलेट है वो बिल्कुल गोवा की, अगर आप पंजिम जानते हो तो दे हैव अ ब्रिज और वहीं से सारी बोट्स कसिनो पे जाती है। So the reasons were all wrong, but I in the end I loved that I was proved wrong and my team was proved right. So we run to packed houses in Goa, and not only Indians but foreigners also come and they enjoy our tea. So that is one example. Another example was when again in the tea lounges I was not I had no plans to open a lounge in Ahmedabad, and Ahmedabad mein out of 10 households 9 households are my customers. Out of 10 out of home consumptions all 10 are my customers. So जो चाय की किटली वाला है वो अच्छी चाय देता है, उसका मौसम बढ़िया है, वो नीम के पेड़ के नीचे है, अच्छा म्यूजिक चलता है, सबको नाम से जानता है और किसी से पैसे नहीं मांगता है। उसके सामने अगर मुझे टी लॉन्ज खोलना है और मुझे करीबन ऑन एन एवरेज 150 रुपीज की एक चाय बेचनी है और चाय वही है, खाली एटमोसफियर अलग है और शहर मेरा है, तो अहमदाबाद की इमेज काफी खराब है वर्ल्ड वाइड कि अहमदाबादी लोग नॉर्मली खर्चा नहीं करते। तो मैंने बोला अहमदाबाद में तो नहीं खोलेंगे, but our sisters, I am blessed with some sisters and they convinced my father and my uncles कि देखो आप इतना बाहर करते हो तो अहमदाबाद में तो होना चाहिए, हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ जाए ऐसा। तो अगेन अहमदाबाद में खोला। Again I am happy, I was wrong, they were right. During the pandemic, we got so many customers कि आप 2-2 घंटा के लिए खोलो यार, हम चाय पीने के लिए बाहर तो निकले, और
it is really fun when you see these kind of things ke what is apparent you are wrong, what comes out of research you are right. So ऐसे काफी अनुभव हुए, हमारे ऑनलाइन सेल्स में भी ऐसे अनुभव हुए, हमारे ग्लोबल सेल्स में बहुत ऐसे अनुभव हुए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, जैसे 90s में मैं जब पढ़ने गया यूएस, और उसके पहले मेरे पिताजी के साथ मैं पहली बार गया था, तो वहाँ चाय क्या वही किसी को पता नहीं है, तो सारे लोग कॉफी पीते थे। तो पहले तो मैं जब पढ़ने गया तो हर एक वीकेंड में जाता था और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको मैं चाय बना के पिलाता था कि ऐसे चाय बनाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें चाय क्यों पीनी है, हम तो यहाँ कॉफी ब्राजील से बहुत बढ़िया आती है, कोलंबिया से अच्छा आती है, व्हाट इज टी एंड व्हाई इज इट टी? Today, after means in 2018, we celebrated 25 years of us in North America, and we had a large celebration. And everyone those days used to say कि उस ज़माने में चाय कैसे बनानी पता नहीं. Today, entire America has gone on to health drinks, and tea even today is the cheapest and the healthiest drink in the world. So how things change if you have something to sustain on, and if you know कि आप जो कर रहे हैं वो दिशा सही है, शायद टाइमिंग गलत है या थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. So these are memories where I think that, you know, I was at the right time at the right place. I took the right bet. Somewhere I lost, but I learned. Somewhere I won, and I got more power to take a larger bet in life. So great. Thank you very much. Somewhere you lost, but you learned. This is a very, very important lesson which entrepreneurs should always take. सबसे गलतियां होती, but वो एक एक्सपीरियंस के रूप में लेंगे तो जरूर आगे सक्षम रहेंगे. Thank you very much for. सर अभी तक तो हम लोग जो चल रहे थे एक मॉडरेट पेस पे चल रहे थे, आपके बारे में धीरे धीरे आपकी जिंदगी जा फास्ट चलना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू प्ले सम क्वेश्चंस रैपिड फायर राउंड. सो ये आपके पर्सनल पे भी है और थोड़ी कंपनी के लिए भी है. सो द फर्स्ट क्वेश्चंस फॉर यू कम इज योर प्रीफर्ड प्लेस कप ऑफ टी, अ 5-star होटल और अ रोड साइड टपरी. डिपेंड्स ऑन द मौसम कैसा है. अभी आजकल बारिश का मौसम है तो रोड साइड टपरी डेफिनेटली. अगर यू नो कोई बिजनेस मीटिंग में जाता हूं तो डेफिनेटली 5 स्टार, और वो भी मेरे सिलेक्टेड 5 स्टार्स है. हर एक सिटी में वहां जाता हूं क्योंकि मुझे चाय के साथ आप कुछ भी कर लो बट चाय के साथ बेईमानी नहीं करनी है, इसलिए. If you know preferred choice of career. Your voice was breaking. Can you repeat please? If you were not in business, then your preferred choice of career. आप अगर इस बिजनेस में नहीं रहते और तो क्या करते सर? हाँ, सो काफी बार मैं सोचता हूँ कि मेरा जो प्रीफर्ड चॉइस था वो अगर मैंने लिया होता तो आज तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग. सो मैंने काफी बार मेरे फैमिली में मेरे फ्रेंड्स को, मेरी वाइफ को बोला कि मुझे एक ट्रैवलिंग एजेंसी खोलनी है और मुझे वर्ल्ड में खाली घूमना है, खाली देखना है. तो पैंडेमिक में सब ट्रैवलिंग बंद हो गया. सो थैंक गॉड आई डिडंट गो फॉर माय लव व्हिच इज ट्रैवलिंग. But the good part is that we export to more than 40 countries, so I have to travel a lot. And a better part is that Ahmedabad as a city, now we have a wonderful connection to the world. We have 5 flights to Dubai from which we connect to the world. In the earlier days, while I was going overseas, आप बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में पूरी रात आपकी बिगड़ती है, वापस आने टाइम पे ऐसा होता है. So thankfully, you know, with my business, I can travel. But definitely, I always wanted to become a traveler, a wanderer, and that is something which I think I will pursue in the later part of my life also. Very good. Thanks sir. Sir, your style, slow and steady or fast and consistent? Again depends on the situation. जब कोई बड़ा डिसीजन होता है, जैसे हमने पैंडेमिक के पहले एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया, उसकी लैंड ले ली, सब कुछ कर दिया. अब that, you know, because of the pandemic, we are thinking and we will go slow and steady, because आज commit करो और construction turnaround time is 3.5-4 years. I don't think right now we should do it, and that's what I've been recommending to our board also. So in large decisions it is slow and steady, but अगर कोई मौका आया और मौके पे चौका लगाना ही पड़ेगा तो उसमें भी अलग मजा आता है. जैसे हम रियल एस्टेट प्ले करते हैं, टी लॉन्जेस वगैरह का, तो वहां पे वी गो वेरी फास्ट एंड वी डिसाइड थिंग्स फास्टर देन पीपल कैन इमेजिन. तो काफी लोग ने हमारे ऊपर बुक्स लिखी है, काफी केस स्टडीज हुए हैं कि हाउ डिड वी इमर्ज एज अ लोकल ब्रांड बिकमिंग इंटरनेशनल एंड फाइटिंग विद द बिग विग्स. तो उसमें एक ट्रेंड उन्होंने बोला है कि एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, एंड आई एम सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैव द एबिलिटी टू
look in someone's eyes or look at the situation and decide fast. Whereas multinationals, large corporates, they have a bureaucratic approach, like many times the government. वो भी सही है, ये भी सही है. As we grow, we also are bureaucratic in many ways. I don't deny that fact. But our decision making, if our feet are rooted to the ground, and our decision making can be faster. Well said. सर, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, इसमें हम लोग ने डिसाइड किया, आपने खुद कितनी चाय बनाया और स्पेशली अपने वाइफ के लिए सर? ये बहुत ताज्जुब की बात है कि मेरी मम्मी भी चाय नहीं पीती है और मेरी बीवी भी चाय नहीं पीती है. मैं रोज अपने और अपने पिताजी के लिए चाय बनाता हूँ. और पैंडेमिक में बहुत लोग आते थे कि भाई देखो सब कुछ बंद है, तेरे घर पे कितनी चाय है, मैं आता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा. मैंने बोला मेरा घर है, वेयर हाउस नहीं है. तुम चाय के पैकेट अगर बाजार में नहीं है तो मेरे घर पे भी नहीं है. बट फिर भी वो लोग आ जाते थे, तो उनके लिए अलग अलग चाय बनाने का, सोशल डिस्टेंसिंग रख के चाय पीने का एक मजा और ही है. आज की तारीख में भी काफी लोग, हमारा जो घर है वो सिटी के सेंटर में है, और अभी सिटी इतनी एक्सपांड हो गई है कि पीपल हैव गॉन टू लिव 45 मिनट्स 1 आवर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी. बट दोपहर में कभी भी बेल बजता है, और अभी आजकल तो सारे लोग घर पे ही होते हैं. पहले के टाइम पे हम सब ऑफिस या ट्रैवलिंग में थे, तो लोग आते हैं कि एक चाय की कप चाय हो जाए, तो हम बोलते हैं हाँ. और जो खुद बनाने में मजा है, जैसे मेरे फादर इन लॉ है, तो सुबह 5 बजे की चाय खुद बनाएंगे. कहीं पे भी हम घूमने जाएंगे, और वो शाम को अपना एक कप होता है चाय पत्ती, वो साइड में रख के सो जाएंगे. सुबह उठ के शाम 5-5:30 बजे की चाय खुद बनाएंगे. 7:30 की चाय मदर इन लॉ और लार्जर फैमिली के साथ वो पियेंगे. तो चाय एक बहुत पर्सनल चीज है, और जितना आप खुद बनाओ उतना जैसे जैसे चाय बनती जाती है आपका माइंड का ट्यूनिंग भी बनता जाता है. वो मेरा बिलीफ है. Great sir, thank you. So your focus, customer or competitor? Both. We are friends with both. Today in the pandemic, our tea industry is going through a challenge which they have never gone through. Earlier there was lockdown in the first 2 months, which are the main cropping months in the tea industry. Then definitely there was this big cyclone which went into the northeastern region. उसके बाद ममता दीदी ने लॉकडाउन कर दिया. असम में बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे वो दोनों की बनती नहीं है, तो दोनों ने लॉकडाउन कर दिया. ये सब का इम्पैक्ट चाय पे आया. तो कॉम्पिटिटर के साथ भी हम इतने अच्छे कम्युनिकेशन रखते थे, और कस्टमर के साथ भी कि अभी चाय नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव है. जब हमारे टी लॉन्जेस के कस्टमर्स आते हैं, ऑल ऑफ देम आर डिजिटल, सो दे ऑल राइट कब खुलेगा, ये है वो है. Even today's day and age, on our Instagram page, Facebook page, our customers write कि भाई लॉकडाउन है but हमें चाय चाहिए, तो कैसे मिलेगी. So we have to have a one-to-one relationship. So we have a large customer service team which has a good relationship with each customer. Difficult to believe, we sell more than 45 million kilograms of tea every year, but anyone who has a problem, we have a personalized solution like a doctor. Okay, we are sorry for this, but जब चाय आएगी तो you will be the first preferred. आपके घर पे फ्री डिलीवरी करेंगे. आप कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई मेरी मम्मी के घर पे चाय नहीं है तो वहां भिजवाओ, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, आप अमेजोन पे जाओ, ऑर्डर करो, या फ्लिपकार्ट पे जाओ. बट हम आवर कस्टमर टीम सेज ओके, समवन विल पर्सनली गो एंड गिव. नाउ दिस बिकम्स वायरल कि एक ऐसी कंपनी है जिसको ये छोटी छोटी चीज मायने रखती है. सो बोथ कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी. So great. You have been always a customer-centric approach as well. What do you bank up? Luck or hard work? Definitely hard work हमारे हाथ में है, luck हमारे हाथ में नहीं है. So हम लोग रिक्रूट बहुत करते हैं, और हमें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं. और हमारी उम्मीद ऐसी होती है कि हमसे अच्छे लोग हम रिक्रूट करें. बट काफी बार ऐसा होता है कि उनके जो थॉट्स हैं वो बिकॉज ऑफ देयर अर्लियर जॉब्स दे हैव फिक्स्ड माइंड्स, एंड we require them to change their mindsets. So when we look at how we can align a person to the Wagh Bakri way of doing things, it becomes a mix of both. And that is why I think that if every person, so हमारे पास एक कहावत है कि जो आदमी हमारे साथ 6 महीना 1 साल टिक गया वो हमारे साथ रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर मजा आने लगेगा. और उससे अच्छा उसके फैमिली को ज्यादा मजा आएगा कि ऐसी कंपनी है जिससे हम जुड़े हुए हैं एज अ फैमिली. सो वी वांट टू एंजॉय वर्किंग. हमारी कंपनी में आज भी इतनी बड़ा स्केल के ऊपर भी आज भी कोई टारगेट्स नहीं है. सो व्हेन पीपल कम फ्रॉम मल्टीनेशनल्स,
वो पहले बोलते हैं कि आपकी कंपनी में सेल्स टारगेट नहीं है, सेल्स इंसेंटिव नहीं है, वेरिएबल पे नहीं है, बट हम बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इफ आई want someone to work little bit harder, he should work very hard, and hard work has no it is not something of discussion कि मैं कम हार्ड वर्क करूं या ज्यादा हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क, बट उसके ऊपर आप बोलो कि थोड़ा ज्यादा करो तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, ये सब इंडियन माइंडसेट में तो नहीं आता है. Right, sir. So this is the end of rapid round. I would like to send a 9th question for you. In comparison to US and UK, there are 36 corporate houses in India which have survived the 100 years of enterprises. What do you think is a possible reason of very less business houses in India survives that long? Sir, your view on it. So good question, Sumit. I initially, when I had time, I used to visit Japan, Germany, and a lot of colleges in India as a speaker, in which my main subject was how to strengthen the values of family business and how to take legacies ahead, because I have seen a lot of good legacies fizzle out due to a lot of things. So I believe in India, because I am in India also, I am part of various associations, various family business networks, etc. And I think one thing is common, कि communication ऐसी चीज है between father son, between uncle aunt, आप जितना communication रखोगे उतने problems कम रहेंगे. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कई बार क्या होता है कि इतना पैसा हो जाता है कि आदमी का ईगो बीच में आता है कि मैं क्यों जाऊं. मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप सुबह उठ के बेल बजाओ और बोलो मैं चाय पीने के लिए आया. सामने वाला खुद ना खुद समझ जाएगा, उसने जमाना देखा हुआ है कि वो आदमी क्यों आज चाय पीने के लिए आया. सो आई बिलीव दैट, और काफी चीज रिटर्न में होनी चाहिए. जैसे आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑन थिंग्स टुडेज डे एंड एज, ऑन थिंग्स लाइक देयर शुड बी अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी रिटर्न डूज एंड डोंट्स, because things were that people today are educating themselves in different environments, people are exposed to different media, so people have developed their own do's and don'ts, and it should be very clear कि देखो आप personal life में कुछ भी करो, but if you are in a business which is having a family business tag, you should behave in a particular way, and that is where I believe people will be more successful if they put pen to paper and write things down. Thank you, sir. How the family wisdom has to be taken care. Thank you. You're explaining in detail. So the 10th question for you. Corporate and family are two distinct domains with different checks and balances. But in your case, you have been successful at both ends. How would you like to explain that? I personally don't think I have been successful to a level which I could be, but कोशिश पे दुनिया कायम है, ऐसा है. So you have to be genuinely interested in people. So in both the things today, corporates में you won't believe, we see so many good managers, good professionals who believe in things like WhatsApp, emails, etc. So हम ऐसा, I am a big proponent कि आप मेलबाजी बंद करो, आप सामने बैठ के बात करो. So काफी आपकी ऑफिस में या बाहर भी मैंने आप सबने देखा होगा, a person sends a mail with CC to 11 people. Now it has no meaning, means if you are communicating to someone, why do you want 11 people to know what you are communicating? आप 2 लोग 4 लोग को बोलो business में, 11 लोग is too much. So in our company, I have made a rule that no mails with more than 4 CCs will be allowed. And I am definitely not going to read any mail which is more than A4 size paper. So लोग बहुत ज़्यादा, हमारे education अलग हुआ है और आज के communication tools अलग है. लोग WhatsApp भेज देते हैं, जैसे किसी की birthday है तो भी happy birthday on WhatsApp. आप खुद जाके बात करो, आप फोन उठा के बात करो. सो इससे काफी दूरियां मिटती है और जेन्युइनिटी आती है. आज हम लोग काफी काम, लाइक हमारी कंपनी में तो सारे काम हम MS Teams पे करते हैं, बट जो मजा आती है कि हम एक रूम में बैठे हैं और आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देख के हम समझ जाते हैं, वो डिजिटली नहीं हो सकता है. एंड दिस इज व्हाई देयर हैव बीन मेनी बुक्स रिटन ऑन हाउ why it is important to go on, say, family outings or corporate outings, spend time with people so that you understand each other's, it's a different subject, but on a philosophical level, on a different level, our saints, इतिहास में लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑरास होते हैं, वो ऑरास के मैच होने की जरूरत है. देयर आर अलग अलग चक्रा होते हैं, उनका होता है. वी आर ऑल बॉर्न under different planets, different circumstances. So ये जो personal communication से होता है,
जितना पर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा रखोगे उतनी गलतफहमियां या कम्युनिकेशन गैप्स कम होने की संभावना है. सर थैंक्स फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये फैमिली के लिए भी लागू होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होता है. थैंक यू वेरी मच सर. So the last question comes here. Any event or the moment of your life which you think is memorable for you and your wish to share with us? Definitely our 100 years event which we did very recently, and it was in January, and परिवार में काफ़ी चर्चा हुई, कॉर्पोरेट में काफ़ी चर्चा हुई कि क्या हमें ये करना है. पहले शुरुआत ये हुई कि हर एक कंट्री में एक एक इवेंट करेंगे, 1 साल तक चलाएंगे. किसी ने बोला कि नहीं, बॉम्बे में एक बड़ी इवेंट करेंगे, दिल्ली में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे. फिर हमने तय किया कि नहीं, हम एक ही जगह बहुत बड़ी इवेंट करेंगे, सबको बुलाना है, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं. और ऊपर वाले की मेहरबानी, आप जैसे सुमित, यू केम, आई वाज वेरी टच्ड. So all our distributors globally came, all our distributors from India came with their families, and it was something which was unbelievable. सोच थी, but हो सकता है वो होने के बाद मालूम पड़ा. और आज जो आपने आगे का क्वेश्चन पूछा है कि लक, नाउ who would have known कि जनवरी में जो हुआ है इतनी बड़ी इवेंट, और फरवरी में, मार्च में कंप्लीट यू टर्न हो जाएगा. और आज की तारीख में मैं इवेंट मैनेजर्स से बात करता हूँ कि काफी लोग बॉलीवुड से आए थे, वो लोग भी कहते हैं कि आपको क्या पता था ये होने वाला है. इसलिए क्योंकि क्या है, उनके पास टाइम नहीं था, तो हमने बोला कि भाई चलो ये डेट नहीं तो ये डेट. आप मींस एट एवरी लेवल वी वर सेइंग कि ओके लेट्स डू इट, फाइंड अ वे. व्हाट एक मर्फीज लॉ है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग. सो ऐसा ही काफी बार हुआ कि कोई फ्लाइट मिस कर गया, किसी को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, एंड में सब कुछ बादल हट गए और बहुत बढ़िया इवेंट हुई. सो आई बिलीव कि द क्लोजेस्ट इवेंट टू योर क्वेश्चन इज दैट आवर 100 years 100 साल बेमिसाल इवेंट, which I think was, I was lucky enough to witness and host that event. Thank you Parag ji for all the guidance, insight you have given us, sir. But इसके बाद लोगों में बहुत सारी curiosity है. I would request audience to put all whatever curiosity questions you want to ask in Q&A sections. The first questions come for you, sir. Sir, how Wagh Bakri maintain their taste in tea? Lot of competition in the market. Still, Wagh Bakri is favorite of mine. Anyone? So you would be surprised to know कि हमारे जितने भी हमारे जो पैकेट में जाते हैं वो ब्लेंड्स, टी के ब्लेंड्स होते हैं. There are more than 14,000 tea gardens from which we buy our tea. अब चाय का बागान ऐसा होता है कि चाय का जो पेड़ होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है. जितना सनलाइट हुआ, रेनफॉल हुआ, उसके ऊपर पत्तियां आई, हर एक पत्ती की क्वालिटी अलग होती है. सो वी आर ट्रेन्ड टी टेस्टर्स. सो एवरी डे इन द मॉर्निंग फॉर 2 hours वी पुट आवर मोबाइल फोन्स इन साइलेंट और हम लोग टी टेस्टिंग करते हैं. एंड एवरी ब्लेंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स टेस्ट एंड देन इट गोज फॉर पैकिंग. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी क्वालिटी ऐसी है कि कस्टमर कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कुछ ऊपर नीचे हो गया. एंड the reason we have been able to build the trust of our customers is people understand quality. आज बहुत मैन्युफैक्चरर्स ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया we work with a lot of family managed organizations, we work very closely with काफी लोग ऐसा कहते हैं कि कस्टमर को टेस्ट की इतनी पहचान शायद नहीं है. बट मैं बोलता हूँ कि कस्टमर को हमसे ज्यादा पहचान है और हमारी जिम्मेदारी है बाकी सब साइड में रखो, बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का हमारे इंडस्ट्री में टेस्ट कहते हैं वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि कस्टमर शुड ब्लाइंडली से कि भाई वाघ बकरी है तो चाय सही. राइट, थैंक यू सर. सर एक जन का है कि व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स फॉर वेस्ट बंगाल लाउंजेस? यस, we own one of the largest tea offices in West Bengal. कलकत्ता में हमारी ऑफिस है रूबी हॉस्पिटल कॉर्नर पे ITC होटल के सामने. And we are the lone people having our large office. All the other big companies have either closed down offices because business has gone digital and or moved it to the warehouses. Now West Bengal we launched last year and we are very happy कि वहाँ के लोग चाय के तो शौकीन है ही, बट उन्होंने हमारी चाय को सराहा है. बट अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उस हिसाब से हमने हमारे एक्सपेंशन प्लान्स थोड़े होल्ड पे रखे हैं. Next year we are going to look at West Bengal and the Northeast. Right now we are not looking at that region, unfortunately. Okay, sir. So currently the prices of raw tea have gone up ₹100 per kg, and there is a short supply too. How you are dealing with it? How Wagh Bakri Group is dealing with it?
So like I told you, it is really challenging. करीबन 200 मिलियन चाय ये लॉकडाउन के कारण नहीं बन सकी, और फिर वो बारिश, आजकल फ्लड्स बहुत है. So we are in touch with, like I said, most of the tea planters, and they are going through hell. Now when my supplier is going through hell, I have to support him. You know, I cannot tell him कि भाई मुझे कुछ भी करके आप ये करके दो. So we are supporting them. On the other hand, we are only able to give 60% of the demand for our tea. So एक तो challenge है कि इतने साल तक आपने demand create की और अभी जब demand है तो आप चाय नहीं दे सकते. But what can be done? We are, trying to communicate with each and every customer that we are here and we will be at your service. But please bear with us. A situation has happened which is beyond anyone's hand, and it is something that the government has done, something that the Almighty has done. We cannot do anything. At the same time, हमने हमारी ब्रांड की वैल्यू इतनी बिल्ड की है कि जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ता है हम एमआरपी नहीं बढ़ा सकते हैं, बट फिर भी कस्टमर कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट 100 रुपया बढ़ गया तो आपने एमआरपी क्यों खाली 50 रुपये बढ़ाई? बिकॉज आई बिलीव दैट आई शुड हैव इनफ टी टू गिव before I raise my MRP to a level. So right now we have cut all other costs. For example, we have put a freeze on recruitments. We have cut a lot of our trade marketing costs. Why? Because we don't want to raise our prices to a level that my supplier, the producer, has been charging me due to unforeseen circumstances. Right, sir. Thank you, sir. Very well explained. So there's one guy asking from Nigeria the question: how do you withstand Tata Unilever multinational giants? So एक हमारी ऑफिस में SOP है, कोई भी नया सेल्स में आदमी ज्वाइन होता है तो हम उसको पहली सीख ये देते हैं कि कभी दुकान में जाके ऐसा मत बोलो कि कंपटीटर की प्रोडक्ट बुरी है. हम लोग ऐसा कहते हैं कि चाय एक हमारी इंडस्ट्री है, हमारी माता है, इसे चाय, हर एक चाय का कप अच्छा ही होता है. खाली आप एक लाइन के बाजू में एक अपनी लंबी लाइन जोड़ दो कि हमारी प्रोडक्ट एक बार चख के देखो, फिर आप तय करो कि क्या है. So, Tata Unilever, very well respected and wonderful organizations, wonderful brands. उनके हर एक चेयरमैन हमारी ऑफिस में आते हैं, पिताजी को मिलते थे पहले तो, और we have a lot of respect for them. But India is a diverse country. हर एक 250 किलोमीटर पे लोगों का खाने का टेस्ट, बोलने की तहजीब और चाय बनाने की स्टाइल अलग होती है. So to cater to all this is a big challenge. It is like, you want to make a one solution for all, which is impossible. So that is why in tea, there are so many regional brands. I am in our association, there are more than 250 members and everyone is successful in their cluster. कोई 2 डिस्ट्रिक्ट में देता है, कोई 3 डिस्ट्रिक्ट में देता है. चाय तो अच्छी ही देते हैं. But then the questions comes कि how much you want to scale it up, how much you want to invest in brand building, how much you want to invest in infrastructure. So, it is not a question of my competing with them. It is a question of how do we engage with the customer and let the customer decide what he or she wants. We have a lot of mutual respect for all people in tea. Great, sir. One Ravi ji is asking, are you thinking to coming back to Africa, either South Africa or other countries? नहीं, देखो वो एक यूनिक स्टोरी है. हमारा फैमिली से कोई वापस नहीं गया. अभी मेरा साउथ अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमेशा मुझे बोलता है कि आप अपने पिताजी को लेके आने वाले, हमारे पास पूरे पेपर्स है, सब कुछ है, बट हम विश्वास पे रख के जो चीज आए थे वो चीज वापस लेने नहीं जाना है. और मजे की बात ये है कि जहाँ पे हमारे चाय के बागान थे वहाँ आजकल अभी स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हो चुके हैं. और मेरे दादाजी जब इंडिया आए तो वो उनके भाई ने उनको बताया कि भाई देखो यहाँ तो फ्रीडम स्ट्रगल में जाना है, चाय की दुकान के लिए हमारे पास पैसे नहीं है. तो वो बोले कि चलो मैं जॉब करने जाता हूँ. तो महाबलेश्वर बॉम्बे के नजदीक जो है वहाँ उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने चाय के बागान रखे थे, तो वहाँ एज ए मैनेजर वो काम करने गए. तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ साल में एक बार जाऊँ, और वो जो गार्डन वहाँ वो काम करते थे वो भी आज स्ट्रॉबेरी फील्ड बन गए हैं महाबलेश्वर के पास. तो वहाँ मैं आधा दिन बैठ के आता हूँ तो मुझे काफी सुकून मिलता है कि जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ, आगे की बात करो. ठीक है. So small tea stalls are unable to afford 2 kg dust tea pack. What are you planning to maintain their 5 rupees cup of tea, a street side tea stall? आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? देखो ऐसा है, सबसे पहले 5 रुपए में चाय नहीं मिलती है.
चाय का जो दाम होता है उसके हिसाब से एक जो कप होता है उसमें चाय से ज्यादा कॉस्ट मिल्क की होती है और चीनी की होती है. यू नो, चाय तो खाली 2 ग्राम चाय एक कप में जाती है. सो इफ यू speak with a hot tea shop owner, and we have years of decades of working experience with them, they are more concerned about the cost of milk and the cost of sugar, also the cost of that infrastructure which they do. Chai, again I am repeating, only 2 grams goes in a cup of tea, so the cost of tea does not decide the cost of the cup of tea. At the same time, as a customer, if you want to go, today's day and age, it is important you don't drink tea in, you know, आप एक कुल्हड़ में चाय पियो, आप वो प्लास्टिक के कप में मत पियो. तो मैं काफी बार वेस्ट बंगाल जाता हूँ मेरी ऑफिस के बाहर किटली पे कि क्या है आजकल, कौन सी चाय लोग प्रीफर करते हैं. तो जो चाय का कप था वो एक छोटा पैक बन गया है. यू नो, सो जो आप 5 रुपए बोले, बहुत हंसी की बात है कि लोग जो एक छोटा एक ही सिप आता है उसको वो चाय का कप कहते हैं. Whereas if earlier days एक चाय का कप हुआ करता था. आज भी आप मिडिल ईस्ट या कहीं टी ड्रिंकिंग कंट्रीज में जाओ तो चाय का एक बड़ा कप होता है जिसमें आप चाय पीते हो. सो लोगों ने क्या है, सस्ते देने में कंजम्पशन का क्वांटिटी कम कर दिया है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है. सो आई टेल अ लॉट ऑफ दिस पीपल, डोंट डू इट, डोंट थिंक. अगेन इट कम्स टू माय बिलीफ इन कस्टमर्स. A customer does not want it at 5 rupees. He is willing to pay 10 rupees, 20 rupees. But you give something which he will enjoy and come back for it. You know, so price point is not valid in any product category beyond a point. Right, sir. Sir, एक और है, are you planning to go into the backward integration? This is something which I have been hearing last 30 years, that, you know, a lot of people, they say that, you know, आप इतनी चाय का इस्तेमाल करते हो तो आपके खुद के बागान ले लो, ये है. बट इतिहास ये बोलता है कि यूनिलीवर और टाटा दोनों के पास खुद के बागान थे. आज you have to think like a farmer. When you think like a farmer, you have a different set of problems. कि आज रेनफॉल हुआ कि नहीं, आज ठीक से सनलाइट हुई कि नहीं, क्रॉपिंग हुआ. प्लस टी is one of is the largest employer of females in the world, the tea industry. रोज जितनी भी फीमेल्स आती है वो चाय के बागान में जाके चाय प्लग करती है. So these are big challenges and it's a different industry. So definitely we are not thinking of going back to something which my great grandfather was running, because that is a different industry. A lot of people in management have said that a lot of people should do something like a Bush to packet strategy, etc. But chai mein wo challenge hai aur wo possible nahi hai. Again, both my big brothers, Unilever and Tata, have come out of it and come out of it in a very difficult way. So chai mein forward integration ka scope hai, backward integration ka scope nahi. Okay, sir. Thank you. The last probably some more questions, because many questions are pouring in. We would like to restrict because of the time. Final few questions, sir. We are here. Some tea over 3,000 rupees also. 4,000 रुपए kg की भी चाय मिल रही है. सर क्या ऐसा डिफरेंस वो लोग लेके आते हैं जो आपको लगता है कि एक नॉर्मल चाय और एक 3,000 रुपए की चाय में होती है? ऐसा है, हमारे टी लॉन्जेस में हम गोरमे चाय बेचते हैं ना. गोरमे चाय के रेट 6,000, 10,000, 12,000 रुपए किलो के होते हैं. बट उसका जो पीने वाला है उसको हम कनसियर कहते हैं. उसको सही चीज की पहचान है. जैसे काफी लेडीज ज्वेलरी में जाती है तो एक होता है कि आप ज्वेलरी में जाओ और जो डिजाइन अच्छी लगे वो लेके आओ. दूसरा नॉलेज होता है कि कितने कैरेट का डायमंड है, उसकी क्या परख है, उसका क्या कट है. तो चाय में भी ऐसा होता है दैट, यू नो, एक बागान में जैसे एक हमारी रेंज है फुल मून टी. नाउ दिस टी इज वेरी पॉपुलर इन जापान एंड जर्मनी. This tea is plucked only during days of nights of full moon, और उसका प्रोसेसिंग भी अलग तरीके से होता है. दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्शन है which takes only organic stuff. So हमारी ऑर्गेनिक चाय की जो रेंज है also it is very expensive. इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और उसके ट्रेड ऑफ, आज कोई फार्मर है, if he wants to grow organic tea, he will have to sacrifice 2 years of crop to grow his organic tea. And he will be able to grow in limited numbers. So to compensate him, the prices and his input costs are very high. So it is as if you go to, you know, a Rolls Royce company and say कि मुझे मारुति के दाम में Rolls Royce क्यों नहीं मिल सकती है. अब वो completely handmade है, वो एक अलग तरीके का vehicle है और उसको use करने वाला भी जानता ही है. तो जब लॉकडाउन के बाद हमारी वेबसाइट्स खुली, हमारी टी लॉन्जेस खुली, the largest base of customers who came and bought tea are these connoisseurs. यार घर में वो हमारी स्पेशलिटी चाय खत्म हो गई तो आपके पास कितनी है, एंड पीपल आर बाइंग इन बल्क.
सो सामने वाले को ये लगे कि 10,000 रुपए किलो की चाय आप क्यों इतना लेते हो, पर वो बोले इसके बिना चलेगा नहीं, यू नो, उसकी मुझे परख है और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि एक सिप लूंगा मेरे को पूरा दिन चलेगा. सो दिस इज बेस्ड ऑन चॉइसेस व्हिच पीपल हैव. थैंक यू सर. आपको मालूम है जैसे ऑडियंस सब ऑल ओवर वर्ल्ड से, ये क्वेश्चन लंदन से सर अमित जाजू, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ टी फ्रॉम हियर? व्हाट आर द इनोवेशंस यू एक्सपेक्ट इन द टी सेक्टर? So let me tell you, 10 years back, 10 years is not a big time. 10 years back when we used to go and research a house or a office, एक चाय का डब्बा होता था और उसमें एक चाय होती थी. किसी को पता नहीं था ये चाय कौन सी है. मम्मी सुबह चाय बनाती है, नाश्ते के टेबल पे लोग अच्छे हैं, चाय अच्छी है, घर काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ. Today when we do research in offices as well as in households, what has come out is everyone has a choice. So someone is drinking lemon tea. Someone is drinking green tea in the evening. Someone is drinking Darjeeling tea before going to bed. Someone is drinking chamomile tea. And everyone knows why I am drinking this tea. So चाय का जो पूरा fragmentation हो गया. Someone believes in organic, so they drink only organic tea. Someone believes in packaging, कि मुझे अच्छे packaging वाली ही products लेनी है. तो वो कोई और चाय ले रहा है. You know, because he loves the packaging. So today people have become very choice conscious, and we should thank the media. So चाय का future ये है कि tea has a lot of uses and tea is going to get even more fragmented. You won't believe people come to our websites and our launches and say कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि 20 किलो वजन कम करना है तो आप ग्रीन टी पियो. तो कौन सी ग्रीन टी पियो? तो हमारे यहाँ we have kept relationship executives who explain to them कि ग्रीन टी से वजन कम नहीं होता है, आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको सुबह चलना जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, you know, थोड़ा कैलोरीज बर्न करने हैं, साथ में ग्रीन टी पियो तो अच्छा है. So you know, there is so much in the media on tea that tea is becoming more and more fragment. गवर्नमेंट के साथ during COVID times we had a good interaction. हमें अनायास means coincidentally in January during our 100-year celebration we had launched a kawa tea, which is the same formula which the department, Ayush department of the government is recommending as a preventive drink for anti-corona. तो वो हर एक, तो वो उनका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आप हॉस्पिटल्स में दीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए. नाउ द मीडिया को उनकी भनक आ गई तो उनका भाई इनके पास दवाई है. तो हमने यू नो आई हैड टू कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टेल कि ये दवाई नहीं है, ये चाय है और चाय के अनेक रूप होते हैं, ये एक आयुर्वेदिक ब्लेंड है. सो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि यू नो मुझे पर्सनली आप पूछो तो फ्यूचर ऑफ टी ये लगता है कि आई हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम बीइंग अ मेडिसिन. यू नो, मेडिसिन आप अगर बीमारी है तो लेते हो, चाहे आप जैसे भी हो, जैसे आपका मन है, जैसे चॉइस है, इसलिए लेते हो. एंड इट मे हेल्प इन योर इम्यूनिटी इज अ बेनिफिट बट इट इज नॉट अ मेडिसिन. सो चाय का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. चाय के प्रोड्यूसर्स से भी मैं काफी कहता हूँ कि आप एक साल भूल जाओ, 2020 वैसे भी हमारी लाइफ से हम निकाल देने वाले हैं. यू नो, आप भी निकाल दो, अगले साल इससे अच्छा होगा. आप अच्छी चाय पकाओ, हम लेने के लिए तैयार हैं. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच for guidance. I think we would like to stop here because we have a time limitation. So there are many questions pending. Sorry, audience. We would like to take next time. I would like to now request Mr. Srikanth Sabu to give the thanks note. Thank you very much, sir, and thank you very much to all the panelists. And thank you very much, Parag Bhai. Myself, Srikanth Sabu, Roundtable International Board Member and Chairman for Roundtables in the Africa, Middle East and Indian Ocean. I had heard somewhere that good tea and good company are two of the simplest yet greatest pleasures of life. I think all of us have got the good company of you, and we have also got the key to the good tea, which is Wagh Bakri Chai. And thank you for Parag Bhai for taking us through a journey of 100 years and also the story with Bapu. It was absolutely fascinating. You mentioned so many things which are take home for all of us in terms of how research and development has been important. When you opened your first tea lounge, it was not in a big bang, most expensive area of Nepean's Road, but in Polo Victory in Jaipur. We also got to know today that largest industrial sector in the industry in the world to employ females is tea sector. So much of wisdom we have got today from you that when you take large decisions, you should be slow and steady, and the other decisions when you take, you should be fast and consistent. All your answers, the way you answered in the rapid fire round,
I think you are a winner, and the tea hamper should come from our side to you. But thank you very much, Parag Bhai. You have been wonderful, and I'm sure all the audience have been enjoying it. And it's a pleasure and an honor to be in this session. And I look forward to seeing you and meeting you again. And again, thank you, Sumit Babu and HEMA Foundation, for such a wonderful and informative session, which has benefited one and all. Thank you very much to all the panelists for being here. Thank you, sir. Thank you, Thank Sabuji, you all. for giving us thanks note, joining us from Dubai, taking out your precious time. Stay tuned on 9th August, 11 a.m. We are inviting an industrialist, an entrepreneur, an artist. Yes, hearing the right name, Ananya Birla, a very big corporate group coming, following her passion. Latest launch, Unstoppable song. We will tune on 9th August at 11 a.m. sharp. Thank you, Parag ji. Thank you, audience. Sorry if I'm not able to take all the questions because of the time limitation. Thank you, Parag ji, again in last. Thank you, everyone. Thank you. Real pleasure. Sumit ji and the entire HEM Foundation team. बहुत मजा आया. Sumit. सरस.